entire rich people and their interest is standing by BJP. On the other side, Congress is fighting for the poor people. This the same way we fought election in Karnataka, same way we fought election in Telangana. We already clearly demonstrated our vision in the both of the states. We have delivered in Karnataka whatever we promised to the people of Karnataka. We have delivered in Telangana whatever we promised the people of Telangana. Now we are giving a promise to people of India that when we are going to come back in power, we will do very proactive steps and actions in favor of poor people of this country. The other side only, they are only talking about the divisive agendas. They want to divert the entire attention of the common man through these agendas. That is what we are witnessing every day, day by day, one after one announcement is coming to divide the people, spread the violence among the people, spread the hatred among the people. So our agenda is very clear. Our agenda is people's agenda. Our agenda is poor people agenda. Therefore, that is why we are sticking on these guarantees. Our candidate selection also certainly reflecting on these agendas. So far, we are going to that path. With these words, now I am going to announce the candidates which have been cleared by the Central Election Committee of the Congress Party. Assam, Kokrajhar ST, Garjan Mashari. Assam, Dubri, Rakibil Hussain. Assam, Barpeta, Deep Bayan. Assam, Darang Udalguri, Madhav Rajbanshi. Assam, Guwahati, Srimati Meera Barthukar Goswami. Assam, Dibu, Joyram Engling. Assam, Karimganj, Hafiz Rashid Ahmad Chowdhury. Assam, Silchar, Surjaya Kant Sarkar. Assam, Nagaon, Pratyut Bardoli. Assam, Kazringa, Srimati Rosalina Turki. Assam, Sonitpur, Premlal Ganchu. Assam, Jorhat, Gaurav Gogoi. Then Gujarat, Kutch, Nishibai Lalan. Gujarat, Benskantha, Mrs. Jenny Ben Thakur. Gujarat, Ahmedabad East, Rohan Gupta. Gujarat, Ahmedabad West, Bharat Makwana. Gujarat, Porbandar, Lalitbai Vaswai. Gujarat, Bardoli East, Sithar Chowdhury. Gujarat, Valsad, Anandbai Patel. Madhya Pradesh, Bint, Phul Singh Bararia. Tikamgarh, Madhya Pradesh, Pankaj Agarwal. Madhya Pradesh, Satna, Siddharth Kushwaha. Madhya Pradesh, Siddhi, Kamaleshwar Patel. Madhya Pradesh, Mandla ST, Omkar Singh Markham. Madhya Pradesh, Chindwara, Nagul Nath. Madhya Pradesh, Devas, Rajendra Malavya. Madhya Pradesh, Dar, Radheshyam Mawal. Madhya Pradesh, Khargone, Porlal Khate. Madhya Pradesh, Bethul, Ramu Thekam. Then Rajasthan, Bikaner, Govindram Meghwal. Rajasthan, Churu, Rahul Kaswal. Rajasthan, Junchunu, Brijendra Ola. Rajasthan, Alwar, Lalit Yadav. Rajasthan, Bharatpur, Mrs. Sanjana Jadhav. Rajasthan, Tong Savai Madhapur, Harshchandra Meena. Jodhpur, Rajasthan, Karan Singh Uchiada. Rajasthan, Jalore, Vaibhav Gahlot. Rajasthan, Udaipur, Tarachand Meena. Rajasthan, Chittorgarh, Udayalal Anchana. Uttarakhand, Tehri
गढ़वाल, जोत सिंह गुनसोड़ा, उत्तराखंड गढ़वाल, गणेश गोंडियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा, प्रदीप टमटा, दामन। तो हमारे साथ अभी हम देख रहे हैं कि दंगल 2024 और हम जिस तरह से अभी लगातार लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो आज फिर जो है कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है 3 राज्यों के लिए और 43 उम्मीदवारों की उनने घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में भी उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। जैसा कि हम लोगों को लग रहा था कि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट मिलेगी, उन्हें ही टिकट मिला है। बाकी जगह से भी जो टिकटों का वितरण हुआ है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं, संवाददाता हैं, राकेश शर्मा, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो राकेश, ये जो टिकटें अभी आई हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए सुभाष जी, पीसी जो एआई 43 नामों की जो है हरी झंडी दिखा दी है लोकसभा चुनाव को लेकर। ये नाम को लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था और एआईसीसी के जो केंद्रीय चुनाव समिति, जो संचालन समिति है, उनके द्वारा इन नामों पर लंबे समय से विचार किया जाता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट है, जिनमें से 10 नामों को आज हरी झंडी दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात की जाए तो छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के नाम को लेकर जो पहले से ही जो जताया जा रहा था कि नकुल नाथ जो है छिंदवाड़ा लोक संसदीय सीट से जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो ये बात इस सूची में नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि कमलनाथ के बाद जो है छिंदवाड़ा जो संसदीय सीट है उससे प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे नकुल नाथ। और यही कारण है कि छिंदवाड़ा सीट से इस बार नकुल नाथ को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी बात यदि बात की जाए तो भिंड से फूल सिंह बरैया को चुनावी मैदान में उतारा है। फूल सिंह बरैया विधायक है, कांग्रेस के वर्तमान के विधायक है। इनको इस बार कांग्रेस ने भिंड संसदीय सीट से जो है चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा बात की जाए तो सतना संसदीय सीट की बात की जाए तो सतना संसदीय सीट पे इस बार वर्तमान के जो विधायक है और यदि बात की जाए तो सतना से ही जो वर्तमान में जो सांसद है गणेश सिंह, उनको चुनावी मैदान में हराया था, विधानसभा के चुनाव मैदान में हराया था गणेश सिंह को। उनको हराने के बाद एक बार फिर से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और सतना संसदीय सीट से सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इसके अलावा देवास की बात की जाए, राजेंद्र मालवीय की बात की जाए तो राजेंद्र मालवीय को लेकर लंबे समय से जो है उनके नाम को मंथन चल रहा था। हालांकि इस देवास सीट से सज्जन सिंह वर्मा के नाम को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा भी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हारे हैं। ऐसे में पार्टी ने तमाम जो इमेज, पार्टी की इमेज की बात की जाए या तमाम अन्य कारणों को देखते हुए ही इस बार राजेंद्र मालवीय को देवास संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा यदि मंडला सीट से बात की जाए तो जो वर्तमान में डिंडोरी से जो विधायक है ओमकार सिंह मरकाम, इनको चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। और आपको बता दें कि ओमकार सिंह मरकाम जो है वो कमलनाथ सरकार में अनुसूचित जाति और आदिवासी कल्याण मंत्री भी रहे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति के वो सदस्य भी हैं। इसके अलावा साथ में बात की जाए तो सीधी से कमलेश्वर पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है और सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी हैं कमलेश्वर पटेल। इसके अलावा बात की जाए तो धार से राधेश्याम मुवेल को चुनावी मैदान में उतारा है। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को उतारा गया है। बैतूल से एक बार फिर से पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बात की जाए तो रामू टेकाम पे विश्वास जताया था। एक बार फिर से जो है उन पर विश्वास जताते हुए रामू टेकाम को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बात की जाए तो खरगोन संसदीय सीट से इस बार नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका नाम है कोरवाल खरते। इस बार उनको जो है पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन सुभाष जी, बात की जाए इस सिनारियो की 10 सीटों की बात की जाए तो इस बार पार्टी ने नए चेहरों के साथ साथ वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। यदि बात की जाए तो कमलेश्वर पटेल, नकुल नाथ या फूल सिंह बरैया, सिद्धार्थ कुशवाहा, ये अनुभवी व्यक्ति राकेश, मैं आपको यहाँ रोक के ये पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा का मंसूबा है और भाजपा जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में अपनी ओर मिला रही है और भाजपा चाहती है कि पिछली बार उसके पास 28 सीट थी, एक छिंदवाड़ा नकुल नाथ जीते थे और इस बार वो उम्मीद कर रही है कि पूरी 29 सीट जीतेंगे। तो आज ये जो 10 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, ये सीटों से क्या लगता है आपको कि ये मुकाबला जो है वो इतना सरल नहीं है जितना कि भाजपा समझ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सुभाष जी आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीटों को अपने पाले में लेना चाह रही है
और लेकिन यदि बात की जाए तो छिंदवाड़ा लोक संसदीय सीट की बात की जाए तो छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर इस बार कड़ी टक्कर होनी है। लेकिन देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें इस बार छिंदवाड़ा संसदीय सीट पे इस बार बीजेपी विवेक बंटी साहू को एक बार फिर से मौका देना जा रही है। तो माना जा सकता है कि पिछली बार भी कड़ी टक्कर दी थी विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा संसदीय सीट से नकुलनाथ को, और इस बार फिर से वो फाइटिंग के लिए विवेक बंटी साहू को ही चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन नकुलनाथ की बात की जाए तो 2019 का जिस प्रकार से कड़ी फाइट में नकुलनाथ ने जो है चुनावी मैदान में जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार की फाइट कड़ी है क्योंकि मात्र केवल एक सीट को छोड़ दी जाए मध्य प्रदेश की तो सभी सीटें बीजेपी के पाले में है। तो ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी तो अपनी कड़ी तैयारी कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस को भी अपनी कड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। लेकिन साथ साथ देखिए जो इस बार कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को चुनाव में